Good morning, students of class 5. I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 69 as I'll be continuing with exercise 4 of unit 15 pronouns. Students, please take out your English grammar books and turn to page number 69 as I'll be continuing with exercise 4 of your English grammar book, unit 15 pronouns. Students, in my last video, I had started exercise 4, that is rewrite the sentences using pronouns in place of underlines noun. We all know that we use pronouns to avoid repetition of nouns. So this exercise is based on that only. And I had finished the first and second sentence of this exercise. I'll revise the first two sentences and then I'll be starting with the third one. The first one. Mrs. Preeti is a teacher. Mrs. Preeti teaches English. I like Mrs. Preeti. The noun which is being repeated is Mrs. Preeti. So, our sentence will be, Mrs. Preeti is a teacher, and the second sentence will be replacing she with Mrs. Preeti. So, she teaches English, and the third sentence will be replacing the object pronoun her with Mrs. Preeti. I like her. Now, the second one. Children watch cartoons. Children don't want to study. Parents are worried about children. So, the word children is being repeated in the second sentence, students. So, our sentence will be, children watch cartoons. For children, we will be using the subject pronoun they. They don't want to study. And in the third sentence, we'll be using the object pronoun them for children. So, the third sentence will be, parents are worried about them. So, our sentence will be, children watch cartoons. They don't want to study. Parents are worried about them. Now, students, I'm going to start with the third sentence. And the third sentence is, this shirt belongs to Ram. Full stop. This shirt is dirty. This shirt is dirty. Now, the sentence is, this shirt belongs to Ram. This shirt is dirty. जो noun repeat हो रहा है वो क्या है? This shirt. Now we need to substitute an appropriate pronoun for this shirt, है ना? बार बार repeat हो रहा है. अब this shirt क्या है? This shirt belongs to Ram, है ना? जो ये this shirt ये third person singular thing है. थर्ड पर्सन सिंगुलर थिंग है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर थिंग के लिए हम सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, है ना? इट. और इट जो है वो ऐसा है जो सब्जेक्ट में भी इट होगा और ऑब्जेक्ट में भी इट होगा. तो हमारा सेंटेंस बेटा क्या हो जाएगा? दिस शर्ट बिलोंग्स to Ram. और this shirt की जगह हम subject pronoun क्या यूज करेंगे? It is dirty. हमारा सेंटेंस क्या हो गया? This shirt belongs to Ram. This shirt is dirty. तो this की जगह हमने क्या substitute किया? It. So this shirt belongs to Ram. It is dirty. This shirt belongs to Ram. It is dirty. This shirt thing है और thing third person singular में हम subject pronoun it use करते हैं. And remember, it remains it only whether in subject pronoun or in object pronoun. I hope all of you have written, students. Now,
Now I'm going to erase this and write the fourth sentence. Now the fourth one. Ruchika and I go for shopping. Ruchika and I buy many novels and storybooks. Teachers praise Ruchika and me for our reading habit. Now, this is the sentence and we need to substitute the noun which is being repeated by an appropriate pronoun. So, Ruchika and I go for shopping. Ruchika and I buy many novels and storybooks. Teachers praise Ruchika and me for our reading habit. अब बेटा ध्यान से देखो, ये जो नाउन में इसमें क्या लिखा है? रुचिका एंड आई. दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल. और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ना? तो सब्जेक्ट के लिए हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल का क्या यूज करते हैं? वी. यहाँ पे रुचिका एंड आई है फर्स्ट पर्सन प्लूरल. सब्जेक्ट प्रोनाउन में हम क्या यूज करेंगे? वी. वी बाय मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरी बुक्स. अब देखो थर्ड सेंटेंस देखो. टीचर्स प्रेज रुचिका एंड मी. मी क्या है? ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सिंगुलर का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, बट यहाँ पे रुचिका एंड मी क्या है? प्लूरल है. तो वी का प्लूरल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो जाएगा? अस. इफ यू लर्न द टेबल आप आराम से कर लोगे. तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वी आएगा, और वी का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अस. फाइन. नाउ आवर सेंटेंस विल बी रुचिका and I go for shopping. Ruchika and I go for shopping. Ruchika and I है ना, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी. या रुचिका एंड आई के लिए कोई भी नाउन और आई लगा है तो हम हमेशा फर्स्ट पर्सन प्लूरल में सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? वी बाय मैनी novels and story books. हमने भी कर दिया. अब टीचर्स फ्रेज वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? टीचर्स प्रेज अस फॉर आवर रीडिंग हैबिट. For our
reading habit. फाइन. वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, आफ्टर द वर्ब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. रुचिका एंड आई है तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सब्जेक्ट प्रोनाउन इज वी एंड द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर वी बिकम्स अस. तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? रुचिका एंड आई go for shopping, we buy many novels and storybooks. Teacher praise us for our reading habit. So I hope all of you have written, students. Please write fast so that I can erase and write the fifth one. Okay. Now I'm going to erase this and write the fifth one. Now the fifth sentence is Mindy is my cat. Mindy is fond. बेटा FOND fond मतलब पसंद करना. ऑल ऑफ यू आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, है ना? तो जिस चीज को आप बहुत पसंद करते हो, बहुत लाइक करते हो, उसको हम फॉन्ड भी बोलते हैं. मिंडी इज फॉन्ड ऑफ मिल्क. I give Mindy milk in a bowl. Now the noun which is being repeated is Mindy. So, Mindy is my cat. Mindy is fond of milk. यहाँ पे मिंडी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर एनिमल. और एनिमल के लिए हम कौन सा बेटा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हैं? इट. और इट जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी इट रहता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी इट रहता है. तो इन द सेकंड सेंटेंस मिंडी इज फॉन्ड ऑफ मिल्क, यहाँ पे मिंडी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इसकी जगह हम सब्जेक्ट प्रोनाउन इट यूज करेंगे. एंड इन द थर्ड सेंटेंस आई गिव मिंडी, गिव के बाद मिंडी आया है तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे. एंड इट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्योंकि इट सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी इट रहता है एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी इट. तो आवर सेंटेंस विल बी मिंडी is my cat. It is fond of milk. I give it milk in a bowl. So this is our sentence that Mindy is my cat. It is fond of milk. I give it milk in a bowl. यहाँ पे it क्या था? सब्जेक्ट प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज फॉर एनिमल. और यहाँ पे it ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, थर्ड पर्सन singular used for an animal. And remember that it remains it only whether in the subject pronoun or in the object pronoun. Fine. So I hope all of you have written. Write fast, students, so that I can erase this and write the sixth one. Please write fast. So now I'm going to erase it and write the sixth one. Now the sixth one, and I think this is the last sentence of this exercise. There are
many roses in my garden. I don't pluck roses. Now, there's only one noun underline for which we need to use the suitable pronoun. Now, there are many roses in my garden. है ना, we are talking about roses. Third person plural, है ना, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? Roses. जो roses क्या है? Third person plural. Now, I यहाँ पे first person, I don't pluck roses. Third person plural object pronoun क्या होगा? Because I subject हो गया, don't pluck, ये आपका verb है, verb के बाद आया, तो third person plural object pronoun क्या होगा? Them, है ना? Roses के लिए हमने क्या यूज किया? Them. So our sentence will be, there are many roses in my garden. I don't pluck them. हमने roses को किससे सब्स्टिट्यूट किया? कौन से प्रोनाउन से बेटा? Them. So I don't pluck them. Fine. So there are many roses in my garden. I don't pluck them. With this, students, we have finished our fourth exercise. That is, we had to rewrite the sentences using pronouns in place of the underlined nouns. And I hope all of you have written this exercise in your grammar book, students. Now I'm going to erase this and now I'm going to explain you about demonstrative pronouns. Fine? Okay. Now students, all of you, please turn your book to page number 70 and I'm going to explain demonstrative pronoun. You all must be familiar with the word demonstrative because हमने जब kinds of adjectives बेटा पढ़े थे तो उसमें demonstrative adjective पढ़ा था, है ना? अब demonstrative adjective में हमने क्या किया था कि उसमें हमको ये तो पता है कि जो 4 words हैं this, that, these, those, है ना? उनके बाद जब डायरेक्ट नाउन आता है ना, जब डायरेक्ट नाउन को हम this, that, these, those, जब उसके डायरेक्ट they are followed by the noun तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं ना. अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में. यहाँ पे भी ये जो 4 वर्ड्स हैं this, that, these, those, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के जैसे यूज होंगे, है ना, बिकॉज दे पॉइंट आउट सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स, है ना. अब लेट्स रिवाइज, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. दिस हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा? कोई एक थिंग, जब कोई एक चीज जो हमारे पास में है उसको हमें पॉइंट आउट करना है तो हम दिस यूज करते हैं. दैट किसके लिए यूज करते हैं? कोई एक चीज जो हमसे दूर है. हम हिंदी में बोलते हैं ना यह मतलब दिस, है ना, और वह मतलब दैट. तो कोई एक चीज जो हमारे पास में है तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? दिस. कोई एक चीज जो हमसे दूर है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट. अब दीज क्या है? एक से ज्यादा चीजें जो हमारे पास में है, दिस का प्लूरल दीज होता है. दिस का प्लूरल दीज. एक से ज्यादा चीजें जो हमारे पास में है उनके लिए हम दीज यूज करते हैं.
और एक से ज्यादा चीज जो हमसे दूर है उनको पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दोज। और दैट का प्लूरल क्या है, दोज है। तो ये चारों वर्ड्स भी आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के लिए हम यूज करेंगे, बिकॉज ये चारों किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करते हैं। दिस दैट सिंगुलर के लिए और दीज और दोज प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए। फाइन। नाउ अगेन दिस किसी एक चीज जो पास में है, दैट कोई एक चीज जो दूर है उसको पॉइंट आउट करने के लिए, दीज एक से ज्यादा चीजें जो हमारे पास में है उनको पॉइंट आउट करने के लिए, और दोस्त एक से ज्यादा चीजें जो हमसे दूर हैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए। लेकिन बेटा अभी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं उसमें हमेशा दिस के बाद क्या आता है, नाउन आता है। दिस के बाद हमेशा नाउन आता है। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में दिस के बाद मैंने बताया था ना, इमीडिएटली उनके बाद नाउन आएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा ना, जिसको वो डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं है। फाइन। अब ये मैं आपको समझाऊंगी, है ना। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन demonstrative pronouns and demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives are always followed by a noun, है ना। demonstrative adjective की पहचान है कि उनके तुरंत बाद नाउन आता है, whereas demonstrative pronoun के हमेशा बाद एक helping verb आता है। helping verb क्या होता है, is, are, है ना। is, are, was, were, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इतना आपको याद रखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमेशा दिस दैट दीज दोस के बाद इमीडिएटली बाद में नाउन आता है, वेयर एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस दैट दीज दोस के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो समझ में आएगा, है ना। एग्जाम्पल, दिस इज अ ग्लास। फाइन। और सेकेंड सेंटेंस है, दिस ग्लास इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल जानते हो ना, जो डेलिकेट है, जिसको केयर की जरूरत है, अगर आप ध्यान से नहीं रखोगे तो वो टूट जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। अब एक सेंटेंस किसका है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का है, और एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का है। अब आप यहाँ पे देखो, दिस इसमें भी है, दिस इस सेंटेंस में भी है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, दिस इज अ ग्लास। दिस के तुरंत बाद क्या आया, इज, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब जब भी दिस दैट दीज दोस के बाद हेल्पिंग वर्ब कोई भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फाइन। ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब भी दिस दैट दीज दोस दे आर फॉलोड बाय अ हेल्पिंग वर्ब, तब वो क्या हो गए बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आप सेकेंड सेंटेंस में देखो, दिस के बाद क्या आया, ग्लास, और ग्लास क्या है, ग्लास क्या है, नाउन। जब नाउन फॉलो करता है ना दिस को, तो फिर वो वाले में वो क्या हो जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। So you need to keep in mind कि this, that, these, those, ये चार वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी। एडजेक्टिव में वो कब होंगे, जब उनके डायरेक्टली बाद नाउन फॉलो होगा, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होंगे, जब उनके डायरेक्टली बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। फाइन। सो प्लीज कीप दिस माइंड, जब भी दिस दैट दीज को दोस के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और जब उनके ठीक बाद में नाउन होगा तो वो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने समझाया था आपको जब एडजेक्टिव काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा रही थी कि बाद में जो नाउन आता है उसको वो डिस्क्राइब करते हैं, है ना। Now, some more examples for you to make this concept clear. Now, the next example. The
मफिन्स, आप जानते हो ना वो कपकेक जैसा जो होता है उसको मफिन्स बोलते हैं. And the second sentence is these muffins are delicious. Fine. Now look at the difference in both these sentences, students. These are muffins. अब these के बाद क्या आया? are. और are क्या है? helping verb. है ना? मैंने क्या बताया था? कितने helping verb है? is, are, was, were. ये helping verbs हैं. और जब these के बाद, those के बाद, this के बाद, that के बाद कोई भी helping verb आएगा तो वो क्या हो जाएंगे? demonstrative pronoun. तो क्या हो जाएंगे बेटा? demonstrative pronoun. फाइन. और अब आप सेकेंड सेंटेंस में देखो, these muffins, इधर these के बाद डायरेक्टली muffins आ गया और muffins यहाँ पे क्या है? नाउन है ना? these muffins are deliciously. जब डायरेक्टली बाद में नाउन आता है तो वो क्या हो जाते हैं? demonstrative adjective. demonstrative adjective. तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि जब उनके डायरेक्टली बाद अगर नाउन आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और उनके डायरेक्टली बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो ये डिफरेंस है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में उनके बाद नाउन आएगा और बस ये 4 वर्ड्स है, दिस, दैट, दीज, दोस, है ना? इनके बाद अगर नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव है और इनके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो ये प्रोनाउंस है. ये डिफरेंस आपको बेटा याद रखना है. फाइन. सो दिस वाज अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके. ओके. Now, one more example. That pen is costly. That is a costly pen. Now, I hope you can see the difference, students. In the first sentence, that pen is costly. That के बाद क्या आया? पेन आया. पेन क्या है? नाउन है. पेन क्या है? नाउन है. और जब भी that के बाद अगर नाउन आता है, पेन नाउन है, तो वो क्या हो जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ये आपको याद रखना है बेटा. फाइन. अब आप सेकेंड सेंटेंस ध्यान से देखो. फाइन. दैट इज अ कॉस्टली पेन. दैट के बाद क्या आया? इज आया. और इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, है ना? इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. तो जब दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो क्या हो जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. So this is the main difference between demonstrative adjective and demonstrative pronoun. कि जब भी this, that, these, those, when they are directly followed by a noun, तो वो क्या हो जाएंगे? demonstrative adjective. And when they are directly followed by a helping verb, तो वो क्या हो जाएंगे? demonstrative pronoun. तो आप ऐसे रखो, जिसमें तुरंत बाद noun है तो वो adjective है, तुरंत बाद helping verb है तो वो प्रोनाउन है. हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन है, नाउन है तो एडजेक्टिव है. ऐसे आप उसको अपने याद करने के लिए समझ लो कि अगर दिस, दैट, दीज, दोस के बाद डायरेक्टली बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो क्या है? प्रोनाउन है. और अगर डायरेक्टली बाद उनके बाद नाउन है जिसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, तो वो एडजेक्टिव है. डायरेक्टली बाद नाउन है तो उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब एडजेक्टिव है. और डायरेक्टली बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन है. फाइन. सो ये बेसिक डिफरेंस है बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का. So students, that's all for today. I hope you all have completed exercise 1 to 4 of unit 15 pronouns in your English grammar books. Please, again I'm telling you, please do learn the table given on page number 67 on personal pronouns. If you learn that table, it will be very easy for you to solve the exercise. That's all for today. Thank you students. Have a good day ahead.